the worksheet is just like. So first of all, you have to see like what are word problems. So word problems, you have to choose like addition, subtraction, multiplication, division. There will be some problems that you have to answer. So there are 32 children in the bus. 6 of them leave. How many are left? That if we have 32 and we have 32 and 6. So you have to guess like what would be the operation. Operation क्या होगा? कौन सा operation होगा इसमें? जी क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूं? क्या करूं मैं इसको? Yeah, we will do subtraction because they said like there are 32 and 6 of them are left. ठीक है? Sorry, 6 of them. Yeah, 6 of them left. So how many? They are asking about how many left. जब 6 चले गए हैं तो how many left? So what we will do? We will take carry and we will make it 12, and you can see like it would be 6. And then यहाँ पे हमने carry दे दिया था, so 26. So 26 is my answer. Is that okay? So 26 is my answer. So after that you can move on to the next portion. You can erase that. Okay. So okay, there are 29 children in the cafe. 7 more come in. How many in the cafe altogether? Altogether is a word that we use for sum. Okay, so the yeah, we will add 29 into 7, so we will have 36. Okay, so moving to the next. That's good. Okay, so the question is there are 25 raspberries on a cake. 5 children share them out. How many do each get? Okay, so you are saying 5. Okay, because it's going to be divided. So there are 25 raspberries on a cake. Okay, you can see like there are. No, it's Hamza. It's not 20, beta. There are 25 raspberries on a cake. 5 children share them out. How many do each get? Okay, so you have to listen it carefully. Like 25 raspberries हैं, उनको 5 चिल्ड्रंस के बीच में डिवाइड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं वो लोग 25 रसबेरीज को, तो वो इक्वली डिवाइड करेंगे ना कि मतलब 5 तुम खा लो, 5 मैं खा लेता हूँ और इस तरह करके. सो वेन एवर दे विल डिवाइड देयर रसबेरीज, सो एवरी वन विल गेट 5 बिकॉज 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5. Okay, so here you will do division. That's good. So now moving to the next. Sometimes I don't know what. My 4 friends have 6 sticker sweets each. How many sweets all together? 24. Yeah, 24. Everyone is agree on 24. If you have any different answer, you can say, you can tell me like this. I have a different answer. If you have any different answer, you can share it with me. If you are agree on 24. Which one? Okay. So listen. My 4 friends. Okay, so first of all we will focus on numbers. So my 4 friends, there are 4 friends, have 6 stickles. Stickle is a thing like is a sweet. Stickle is a stickle sweets. उसके पास सबके पास ना 6 stickle sweets हैं. ठीक है? How many sweets all together? सबके पास सबकी stickles मिला के
कितनी आपको लगता है स्टिकल्स बनेंगी, टोटल कितनी बनेंगी स्वीट्स? So 6 multiplied by 6 multiplied by 4 will be would be 24. So that's why means we are plusing 6 4 times, or we are multiplying 6 by 4. So we will get the answer 24. Is that clear now? Is that clear, beta? I have 5 money purses. My gran give me 6 pennies for each one. How much do I have altogether? 30. Yeah, 30. yeah. It would be 30. Okay. So because they are P is representing penny, so you can say that 30 pennies, because here it is mentioned like 5 money purses or 6 for 30, each, teacher. so it would be 30. Well done. Okay, well 30, done. teacher. Yeah. So now the Economic of 16. yeah. Okay, I have 38 p. Yeah, 38 pennies in my purse. I buy a pencil for 17 pennies. How much is left? 21, teacher. 21. So 21. yeah, it's 21. Well done, well done. So we are moving ahead. Okay, my teacher. 21. Yeah, 21 is the right answer. So my teacher has 45 stickers. She shares them with 9 children in the class. How many do each get? 5. Yeah, 5 is the correct answer. Like this, a stadium has thousand, you can say like 10,500 seats and 8 VIP boxes. The stadium is divided into 12 equal sections, 2 premium sections and 10 standard sections. A seat at the premium section costs $8 per game. A seat at the standard section costs $27 per game. How many seats are there in each section? First of all, you have to tell me like how many seats are there for each section. Okay? Let's do it all together, and we will do it again also. Okay. The first thing is the stadium. A stadium has There are total seats 10,500. okay. A stadium has 10,500 seats. जिसमें से जो है हमारे पास है वो है 8 VIP boxes. Okay. और just give me a second. Okay, so यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 VIP boxes हैं. The stadium is divided into 12 sections. Okay, कितने sections में divided है? 12 sections. उसके बाद है प्रीमियम सेक्शन एंड स्टैंडर्ड सेक्शन. 2 प्रीमियम सेक्शंस हैं उसमें से, और सॉरी 2 प्रीमियम सेक्शंस हैं और एक हमारे पास बाकी 10 जो है वो दूसरे सेक्शंस हैं. ओके, 2 प्रीमियम सेक्शन हो गए और 10 हमारे पास स्टैंडर्ड सेक्शन हो गए. ठीक है. और फिर sorry, a seat at the premium section cost $48. जो प्रीमियम सेक्शन की सीट है ना उसकी कॉस्ट $48 है, और स्टैंडर्ड सेक्शन की जो सीट है ना भाई वो है $27. So they are asking how many seats are there in each section. उन्होंने कहा कि ईच सेक्शन में कितनी सीट्स होंगी भाई, ये बताना है आप. Teacher, very real to divide 10,500 with 12 sections. जी, हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है. कौन कौन इस बात पे अग्री करता है? मेरे ख्याल से तो 10,500 को मैंने यहाँ पे divide
बेटा ये 10 किसका आंसर है? ये आपने पुराना कोई आंसर दिया हुआ है 10? टीचर मैं करूं? जी जी सब करें, मुझे सब करके बताएं। अच्छा अच्छा मेरी बात सुने बेटा, आई हैव आंसर्स ऑफ दिस शीट विद मी, ओके? तो आप लोगों ने क्या करना है, दिस इज द प्रॉब्लम। जैसे हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व की हैं, आई वांट यू टू, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स और यू कैन से 3 मिनट्स। हमने इस वर्कशीट को बस सॉल्व करना है, बस इतना करना है हमने आज। और इसी तरह की एक वर्कशीट मैं आपके साथ अपलोड करूंगी। तो बेटा मैं आपको अभी अभी इसमें इसी लेसन में टाइम दे रही हूँ। आपके पास आपकी नोटबुक्स हैं, यू हैव टू ओपन अप योर नोटबुक्स। क्वेश्चन आपके सामने है, मटेरियल हाईलाइटेड है। आपको पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन ईच सेक्शन। आपने अपनी पॉसिबल ट्राई करनी है, वट एवर द थिंग, जिस मेथड से भी आपको समझ लगता है, जो भी आपको समझ लगता है, आपने उसको उस तरह अरेंज करके पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है अभी। तो उसके बाद जो है मैं आपको आंसर बताऊंगी और मैं आपको मेथड भी बताऊंगी कि ये इस तरह नहीं इस तरह सोल्व हुआ है, ठीक है? सो आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स और आप उसको सॉल्व करें। टीचर मेरे ख्याल से जो मैंने 10,500 को डिवाइड किया है 12 से, तो मेरा आंसर आया 875। अच्छा बेटा ये आसान बात कर रहे हैं ना? कौन बात कर रहा है? अच्छा ओके साधारण। अच्छा बेटा अपना मैसेज में टाइप कर दिया करें ना, मुझे आवाज से नहीं पता चलता अभी कि कौन बोल रहा है। The rest of the students, I'm just giving you time. You can take your time. You can solve it in according to your way. और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है. Then I'll tell you answer. I'll show you answer, and then I'll let you know like how the answer comes. Okay, these are the things we will do. We will solve all the problems all together. So I give you opportunity to solve it first because I want to know like how critically you take the problem and how critically you want to solve it. So after that I'll tell you the answer. और अगर आपसे नहीं होता तो definitely I am here. I'll tell you what is the answer. So just don't worry and solve it freely. कुछ नहीं होगा. ओके ओके बेटे मैं ये कह रही थी कि कुछ नहीं होगा, गलत आंसर आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? I will not kill you, okay? Whatever, बेटे जो भी आपको लगता है ना, you can do that. मुझे बस आपका जी, आपको जैसा लगता है, जो लगता है, नो प्रॉब्लम। आपने बस क्या करना है, आपने उसको बेटा आपने उसको सिर्फ ना एक बार सॉल्व करके आंसर मैसेज बॉक्स में लिख देना है। फिर जब मैं आपको आंसर बताऊंगी ना तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको वो क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता होगा मैंने ये गलती की थी, टीचर ने मुझे ऐसे करेक्ट किया था और यही आंसर आता है। और फिर आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने आंसर्स के बारे में, ठीक है? जस्ट डोंट वरी एंड सॉल्व इट फ्रीली। I'll not kill you, okay? मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। टीचर मैंने अपना आंसर सेंड कर दिया है। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आंसर वैसे। चले जी हम देखते हैं। जी हसन, मुझे आपका आंसर अच्छा लग रहा है। जी साद राना और जन्नत और कौन है, और कौन से मेरे प्यारे 2-3 बच्चों और ने सेंड किया हुआ है। इट्स हसन अख्तर, ओके ओके आई गॉट 3 आंसर्स। और जी मैं कह सकती हूँ कि आंसर तो मुझे बहुत ही एक्यूरेट लग रहा है। चले मैं आपको अच्छा हम लोग ऐसे भी करते होते हैं मैथ्स, मतलब कि मैं आपको ना बीच में कंफ्यूज भी करती होती हूँ समटाइम्स, ठीक है? तो जैसे मैं करना शुरू करने लगी हूँ तो देखते हैं यू विल स्टिक टू योर आंसर और यू विल स्विच समवेयर एल्स। तो जी
ऐसा करें, अपना आंसर चेंज कर ले जैसे वो जीतो पाकिस्तान में नहीं करता हो कि अपना आंसर चेंज कर ले. डू यू वांट चेंज योर आंसर? No, teacher, I don't You want don't. to. किसी और का आंसर ले लें भाई, कोई और ले लें. No or yes? No, teacher. Okay, so everyone want their own answer. So I got answer of Sadrana. So definitely, Bete, your answer is totally correct. A stadium has 10,500 seats. तो आप लोगों का क्या मतलब, आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आई कि टोटल सीट्स ये हैं और सेक्शंस टोटल मेरे पास 12 हैं. तो आपने क्या सोचा और कैसे सोचा? बात तो कहते हैं कि आपको हर एक सेक्शन में कितनी कितनी सीट्स मिले थे, इससे पता चल गया था कि डिवाइड करना है. हाँ जी, डिवाइड करना है. वेरी गुड. और फिर आपने कितने सेक्शंस में डिवाइड करना था? 12. तो आपने क्या किया? मैंने 10,500 डिवाइडेड बाय 12 किया तो मेरा आंसर 875 आया था. That's really accurate. This is the answer. Okay, यही आपका आंसर है बेटा. ओके जी, मैं आपको आंसर शो भी कर दूंगी एट द एंड, लेकिन अभी तक मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपका यही आंसर है. ओके ओके जी, सो वी विल डिवाइड द नंबर. Means we are going to write the total number of seats that are 10,500. So now 10,500 is going to be divided by 12 because we have 12 sections. So 12 eights are 96. So as you know the table, so now you will subtract 96 from 105. So the 1 will give carry to 0, so it will become 10, and then 10 will give carry to the 5, so it will become 15. So 15 minus 6, it would be 9. So 9 minus 9 is 0, so we are not writing anything else. So the 0 will come down, and now the next number will become 90. So we know that 12 sevens are 84. So now 9 will give carry to 0, so it will become 10. So 10 minus 4 is equal to 6. So the above 0 that was left will come down, and now the new number will become 60. So 12 fives are 60. So at the end we got that 875 seats are present in each section. So we have 12 sections, and each section has 875 seats. Okay. ओके जी, सो मैंने आपको पहले बताया, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट माई आंसर ओवर हेयर सो दैट यू वुड लाइक यू विल रिमेम्बर इट. बेटे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेरा आंसर. तो पहले जो आंसर आया था दैट वाज 875. ओके, सो अब ये जो क्वेश्चन था, आपको ये पता चल गया था कि मेरा हर सेक्शन, माई एवरी सेक्शन कंटेन्स 875 सीट्स. जब आपको ये बात पता थी तो आपने इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा प्रोसीड करना था. तो आपने ऐसे करना था, 875 जो है मेरा, इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि आपको ये तो पता था कि कितनी सीट्स हैं मेरे पास हर सेक्शन में. तो उन्होंने कहा है कि हर सेक्शन की सीट्स को 35 से डिवाइड कर दो तो कितनी रोज बनेंगी. तो जब हम 875 को डिवाइड करेंगे 35 से, so you can use this calculator and you can see the answer because we just have 2 more minutes. तो यहाँ पे हमारे पास है
875 आया था ना, so 875 is going to be divided by 35. So the answer is on your screen, 25. So you will write 25 rows in each section, in each row, sorry. तो ये हो गया. अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको. किसी को अगर नहीं समझ आया, you can ask me again. Is that okay? We can move ahead. Can we? Can I move ahead? Or if you have any question, you can. Okay. So there's no other question. बेटा मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइम देती हूँ to ask me questions. Don't let it go. अभी टाइम है, अभी पढ़ लेंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा. So now the next question is, if all seats in the premium section are sold out for a game. Premium section की अगर सारी seats sold out हो जाती हैं, how much will the stadium get from those ticket sales? बेटा प्रीमियम सेक्शन की कॉस्ट देखनी है आपने, $48 है. और अगर $48 की 8 बेटा मुझे कंप्लीट करने दे, फिर आप अपना आंसर बता देना, क्योंकि हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा आपने डिफरेंट तरह से जज कर लिया क्वेश्चन को. अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया कि आपके पास 2 प्रीमियम सेक्शन है, ठीक है. तो 2 प्रीमियम सेक्शन हैं, तो 2 प्रीमियम सेक्शन की टोटल सीट्स जो आएंगी, आप 875 लेंगे, फिर 875 लेंगे, क्योंकि 2 सेक्शंस की सीट्स को कंबाइन करेंगे. एंड देन यू विल चूज कि अब इसने मल्टीप्लाई होना है 48 के साथ, कि इसने 48 के साथ और क्या करना है. तो इन दिस वे प्लीज जस्ट लेट मी नो योर आंसर. अच्छा बेटा टाइम कम है. आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट आई एम सेइंग टू यू. मैं आपको ये कह रही हूँ, और मे बी देयर इनका यही आंसर होगा जिनको यही समझ आई होगी. बेटे वी हैव 2 प्रीमियम सेक्शन, सो आई एम जस्ट राइट. मेरे पास 2 प्रीमियम सेक्शंस थे, सो आई एम जस्ट राइटिंग 2 एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दैट सेक्शंस विद 875. या मैं 875 को 2 टाइम्स प्लस कर लेती तो मेरे पास जो 2 प्रीमियम सेक्शंस है उसकी टोटल सीट्स आ जाती. मेरे पास टोटल सीट्स 2 प्रीमियम सेक्शंस की आई है 1750. सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. अगर उसकी सारी जो आपकी टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो गई हैं, तो आपको पता है कि एक टिकट जो है वो $48 की है. सो इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद 48, okay. So the answer is 84,000. So you can see that 84,000 is my answer. और आपको ये भी पता चला कि आंसर 84,000 क्यों आया, because we have 2 premium sections. उनकी सीट्स को कंबाइन किया गया है. उनकी सीट्स को कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास चीज आई थी वो 1750 शायद. तो उसको फिर जब हमने 48 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है. सो द थिंग बेटे, अब यहाँ पे हमारे पास 2 और चीजें हैं. सो व्हाट यू वांट, इसको अगली क्लास के लिए रख लें, बिकॉज हमारे पास टाइम अब खत्म हो गया है. इतना समझ आ गया? Yes. ओके बेटा, सो डोंट वरी, वी विल कंप्लीट दिस शीट. और मेरे ख्याल से ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी भी होगी. द सेम काइंड ऑफ शीट जो थोड़ी सी मे बी इजी होगी, मैं आपके लिए आज अपलोड अभी कर देती हूँ थोड़ी देर में. यू विल गेट दैट शीट. और द सेकंड थिंग इज, हम ये वाली जो शीट है इसको कल कंप्लीट कर लेंगे. और द सेकंड थिंग इज के मैं आपको ये शीट भी दे सकती हूँ. व्हाट यू वांट टू सॉल्व इट टुमारो, और you want me to give you that sheet. इसमें 3 questions रह गए हैं, I guess 3 हैं. Yeah, we have 3 more questions. So what is your opinion? क्या आप कहते हैं? मुझे अपना अपने बारे में बता देना जैसा. ओके जी, कल करा देंगे, ठीक है. So okay जी, your time is up, so you can leave the class. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ बेटा.